And the light began to move westward. और वो प्रकाश पश्चिम की ओर खिसकने लगा। Quickly they packed their camels and all their royalties. They taken gifts. शीघ्रता से उन्होंने अपने ऊंटों को तैयार किया, अपना सामान आदि उस पर रखा और भेंट भी रख ली। And I can see them as they take their journey, following the light. For they know that it was a celestial being. It had to reflect some greater light. और मैं देख सकता हूँ, जब वे उस प्रकाश के पीछे चले तो वे जान गए थे कि ये स्वर्गीय प्रकाश है और ये किसी महान ज्योति को प्रतिबिंबित कर रहा है। So is it today, friends, when we see the star shining, we know that it's a reflection of the sun. मित्रों, ऐसा ही आज है। जब हम चमकते तारे को देखते हैं तो हम जानते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। When we see the moon shining, we know it's a reflection of a greater light. हम चांद को चमकते देखकर ये जान जाते हैं कि यह एक बड़े प्रकाश का प्रतिबिंब है। When we see the church shining, we know it's a reflection of a greater light, the immortal and eternal light. जब हम कलीसिया को चमकते देखते हैं तो जान जाते हैं कि यह एक महान अविनाशी व अनंतकालीन प्रकाश का प्रतिबिंब है। But when we darken ourselves and turn our hearts and turn our faith away and say the days of miracles is past and there's no such a thing as these anymore, we are turning our backs on God's eternal light. मगर जब हम स्वयं को अंधकार में धकेलते हैं और अपने मन और विश्वास को परे हटाकर यूं कहते हैं कि आश्चर्य कर्म करने के दिन तो बीत गए, अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो मानो हम परमेश्वर के अनंत प्रकाश से अपनी पीठ फेर रहे होते हैं। And as they wandered on, I can see them leave the mountains and go to the west slope. मैं देख सकता हूँ कि वे चलते रहे और पहाड़ों से गुजरकर पश्चिमी ढलान पर उतर गए। They followed the slopes down to the Tigris River. वे उस ढलान पर चलते हुए तिग्रीस नदी तक पहुँच गए। And then they followed the mighty Tigris on down till they come into Babylon, cross the ford at Euphrates, on down and skirt the lands of Palestine, rejoicing. और वे उस विशाल तिगरी नदी के किनारे किनारे नीचे की ओर चलते हुए बाबुल तक पहुँचे, इफ्रात नदी की झील से पार हुए, फिलिस्तीन देश में से आनंद मनाते गुजरते रहे। They traveled by night because it was cool in the night for them to travel through the desert. वे रात में सफर करते थे क्योंकि रात को मौसम ठंडा होता है और रेगिस्तानी इलाकों से गुजरना आसान बन जाता है। Another thing was the stars shone in the dark, so they had to follow the light. एक बात और थी कि उन्हें उस प्रकाश के पीछे चलना था जो रात को साफ चमकता था। And the light was their guide. वही प्रकाश उनका मार्गदर्शक था। And as they come up, finally come to Jerusalem. और चलते चलते अंत में वे यरूशलेम पहुंच गए। But when it hit Jerusalem, it went out. मगर जब वो प्रकाश यरूशलेम तक पहुंचा तो गायब हो गया। It suddenly disappeared when they hit Jerusalem, because it was their time then to shine the light. जब वे यरूशलेम पहुंच गए तो वो प्रकाश सहसा गायब हो गया, क्योंकि अब उनकी बारी थी कि वे स्वयं अपना प्रकाश बने। And down through the crooked streets of that great metropolis, उस महानगर की धूर्त सड़कों से वे गुजरे, down through the streets of the ancient capital of the world, nearly Jerusalem. उस यरूशलेम में थे जो दुनिया की पुरातन राजधानी सरी का था, The one-time seat of the great Melchizedek, where the great ancient prophets and scribes had wrote so of. वहाँ कभी महान मिल्कीसदेक हुआ था जिसके बारे में बड़े बड़े प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं और लेखाकारों ने लिखा था। But in their slothful, fleshly, half-dazed, ungodly living, the light of the gospel had gone out. मगर इस समय वहाँ पर फैली बुराई, गंदगी, दुनियावी रीतियाँ, अधनंगी व परमेश्वर रहित जीवन शैली से सुसमाचार का प्रकाश उस नगर को छोड़कर जा चुका था। And here was Gentiles in the city of the Jews, crying, "Where is he that's born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and we've come to worship him." और यहूदियों के उस नगर में अन्य जातियों के लोग पुकार रहे थे कि यहूदियों का उत्पन्न होने वाला राजा कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे दंडवत करने आए हैं। What a striking event of this day! यह आज के समय की कितनी चौंकाने वाली बात है। Oh, merciful Father! Amen.
as we look and think, जब हम इन बातों को देखते और इन पर विचार करते हैं तो हे करुणा करने वाले स्वर्गीय पिता, हमें कितना अजीब लगता है। the Jews so asleep until Magi, Eastern Gentiles, had come from far lands, traveling to find the king of the Jews, and they know nothing of it. यहूदी लोग इस तरह से सो रहे थे कि पूरब से, दूर के देश से सफर करके अन्य जातियों के वे ज्योतिषी यहूदियों के राजा को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे, मगर उन्हें कुछ भी पता न था। Today God has taken uneducated man, boys and girls who probably have no more than a grammar school education. आज परमेश्वर ने ऐसे लड़के लड़कियों को चुना है जो पढ़े लिखे नहीं हैं और बस शुरू की 2-4 कक्षाएं पढ़े हैं। Raised up by the power of the Holy Ghost, that's crying in the ears of the church. He's here in His great power to unfold Himself and to make known, and the church knows nothing about it. उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उठाकर खड़ा किया गया है और वे इन नामधारी गिरजों के कानों में चिल्ला रहे हैं कि यीशु अपनी महान सामर्थ्य में यहाँ है कि वह स्वयं को लोगों पर प्रकट करे, मगर इन नामधारी गिरजों को कुछ भी पता नहीं है। They come to give homage. They come to give honor to the King of Kings. वे मजूसी उसे दंडवत करने पहुंचे थे, वे राजाओं के राजा को आदर मान देने पहुंचे थे। And the church in its denominational sleep knows nothing about it. और नामधारी गिरजे अपने संस्थागत स्वरूप में सो रहे हैं और इस बारे में कुछ नहीं जानते। They're strangers. वे तो अजनबी बने हैं। How when these well-glided beasts in their old tapestry hanging from them and the tassels. कैसी अजीब बात है कि ये ज्योतिषी जो अन्य जातियों के पशु वृत्ति वाले मनुष्य हैं, अपने चित्र में वस्त्र पहने ढीले ढाले वस्त्रों में फुंदने लटकाए वहाँ खड़े हैं। And if Gillian once said they were not kings, but they were great enough to be the honored guests of the king. जैसा कि कभी फिलौन ने कहा है कि वे मजूसी खुद राजा तो न थे, मगर वो इतने महान जरूर थे कि वे महाराजा के सम्मानीय अतिथि थे। And here they are sitting aback of these stately animals as they go through the streets saying, "Where is he that's born the King of the Jews?" वही ज्योतिषी अपने देश के शाही पशु की पीठ पर बैठे सड़कों पर पूछते फिर रहे थे कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ वो कहाँ है। The Bible says that all Jerusalem and Herod also were troubled. पवित्र शास्त्र बताता है कि सारा यरूशलेम और हेरोदियस राजा तक सभी परेशानी में पड़ गए थे। Their testimony stirred something. उनकी गवाही ने सभी को हिलाकर रख दिया था। Is it too bad today that the church can't arise out of its stupidity, of its theological exercises, to see the power of the living, resurrected Christ in His glory? क्या आज ये बहुत बुरी बात नहीं है कि नामधारी गिरजे अपनी धर्म स्कूल की शिक्षा की मूर्खताओं को छोड़कर जीवते मसीह की सामर्थ और महिमा को नहीं देख रहे हैं? As an illiterate, uneducated, interdenominational move is striking at the world. और आज दुनिया में अनपढ़, अशिक्षित सभी गिरजों में से निकले लोगों के द्वारा जीवंत आंदोलन सा दुनिया में धूम मचा रहा है। Come and see the glory of the living God. आओ और जीवते परमेश्वर की महिमा देखो। The Holy Spirit is falling just as it did at the beginning. पवित्र आत्मा वैसे ही उंडेला जा रहा है जैसा शुरू में उंडेला गया था। The scriptures must be fulfilled. And here it is at the end time. पवित्र वचन को तो पूरा होना है और यही अंत समय है। And as these magi moved through the street, they stirred from the king to the porter with this message, "Where is he? Where is he at?" सड़कों से गुजरते हुए इन ज्योतिषियों ने राजा से लेकर कुम्हार तक को इस सुसमाचार से हिलाकर रख दिया कि वह राजा कहाँ है, वह राजा कहाँ है। They didn't have the answer. उन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। And today, when Sputniks are sleeping in the sky, when signs of total annihilation is at hand,
और आज जब स्पुतनिक आकाश में घूम रहे हैं, जब सब कुछ भस्म हो जाने के चिन्ह प्रकट हुए हैं कि अंत एकदम निकट है, when women and men are indulging in sin and living in ungodliness, the people scream, "What meaneth this?" and the church doesn't have the answer. जब पुरुष और स्त्री पापों में उलझे हैं, वह अधार्मिक जीवन जी रहे हैं, जब लोग पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो गिरजों के पास कोई उत्तर नहीं है। She's laying asleep. वह गहरी नींद में सो रहे हैं, But the Holy Spirit, God's immortal and eternal life, is here to shine upon whosoever will and can receive it. मगर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का अविनाशी और अनंत प्रकाश है, वह उन लोगों पर चमकता है जो उसे ग्रहण कर सकते हैं और जो उसे ग्रहण करेंगे। The light was gone. वह प्रकाश गायब हो चुका था। They were giving their testimony. वे अपनी गवाही दे रहे थे And finally they called the Sanhedrin together for a council meeting. और अंत में वहाँ के राजा ने सभासदों की एक सभा बुलवाई। And the sages and the prophets come in with a little minor prophet by the name of Micah, his prophecy. और पुराने पवित्र नबियों के लेख और ज्ञानियों के लेखों को खोला गया। तब एक छोटे से नबी की भविष्यवाणी उन्हें मिली, उसका नाम मीका था। And they told the king, "It is written, Thou Bethlehem, are you not the least among all the princes of Judah?" और उन लोगों ने राजा से कहा कि ऐसा लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। But out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। Therefore it must be Bethlehem, where the Christ is to be born, the King of the Jews. अतः यहूदियों के राजा मसीह का जन्म बैतलहम में ही होना चाहिए। Well, no one would tell them how to get to Bethlehem. वहाँ कोई उन मजूसियों को ये बतलाने वाला नहीं था कि बैतलहम कैसे जाएं, किधर को जाएं। But they walked out the gate, and when they left that city of darkness, the light appeared before them again. मगर जैसे ही वे उस अंधेरी नगरी को छोड़कर उसके फाटकों से बाहर आए, तो वही प्रकाश फिर से उनके सामने आ गया। The star appeared, and the Bible said they rejoiced with exceeding great joy. वही सितारा फिर से दिखाई दिया और पवित्र शास्त्र बताता है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। They must have actually shouted a little. उन्होंने जरूर थोड़ा जय जयकार किया होगा। They rejoiced with exceeding great joy. वे अत्यंत आनंदित हो गए थे। They were overwhelmed. वे आत्मविभोर हो उठे थे। The star had appeared to lead them to their final destination of their journey. वह तारा फिर से उनका मार्गदर्शक बनकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने आ गया था। They followed it. वे उस तारे के पीछे पीछे चले। Now they notice it hangs lower than it used to. It's just a little closer now. अब उन्होंने देखा कि वो तारा पहले से कुछ नीचाई पर आ गया था, कुछ निकट आ गया था। And finally, as they went along rejoicing and praising God through the night, Amen, led by the hand of the Lord, और वे रात भर उसी के संग आनंद मनाते परमेश्वर की प्रशंसा करते चलते रहे। परमेश्वर उनके साथ था। the fire of the star come to a little stable, which was a little place in the side of the hill, a cave, and there the star rested over the cave. अंत में वह सितारा रुक गया और जहाँ वो रुका वह एक छोटी सी जगह थी, एक गुफा थी जो पहाड़ी के एक सिरे पर थी, और वो तारा उसी गुफा के ऊपर ठहर गया। And these mighty magi, over a year and 6 months in their journey, on their road traveling, watching, following nothing no other direction but the star. और अपने 1 साल 6 महीने के सफर भर सड़क पर चलते निरंतर एक उसी तारे को देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं देखा। And when it rested, they went in, and there they found the babe, Joseph and Mary. जब वो तारा ठहर गया तो वो अंदर गए और वहाँ उन्होंने उस बालक को, यूसुफ और मरियम को पाया। And they brought gifts from their treasure chest. और उन्होंने अपनी झोली में से उपहार निकाल लिए। They offered unto him gold, frankincense, and myrrh.
और उन्होंने उसे सोना, मुर और लोबान चढ़ाया। If we just have the time, let's stop a minute. अगर हमारे पास समय है तो हम यहाँ थोड़ा सा रुक जाएं। What did the gold represent? He was a king. सोना किस बात का प्रतीक है? इसका कि वह राजा था। He wasn't to be made king. He was born king. उसे राजा बनाया नहीं जाना था, वह जन्म से राजा था। He was God's eternal king. वह परमेश्वर का अनंत राजा था। He was a king, so they offered gold. वह एक राजा था, अतः उन्होंने उसे सोना चढ़ाया And they offered frankincense. और उन्होंने उसे लोबान चढ़ाया। That's a perfume. Very costly. The best that could be gotten. ये एक बहुमूल्य सुगंधित पदार्थ होता है। सबसे बढ़िया लोबान जो उपलब्ध था वही उन्होंने चढ़ाया। What did frankincense mean, the perfume? लोबान किस बात का प्रतीक है? सुगंध, सुगंध है। He was a sweet-smelling Savior unto God, for he went about healing the sick and doing good. यीशु परमेश्वर को भाने वाली सुगंध था, क्योंकि उसने बीमारों को चंगा किया व अच्छे भले काम किए। Gold because he was a king. सोना इसलिए चढ़ाया क्योंकि वो राजा था। Frankincense because he was a sweet-smelling Savior to God. लोबान इस कारण चढ़ाया क्योंकि वो परमेश्वर को अच्छी लगने वाली एक सुगंध था। His life so pleased him that God breathed in his holiness and beauty. For it was his own holiness reflected in him. उसके जीवन से परमेश्वर इस कदर प्रसन्न हुआ कि उसने यीशु के अंदर अपनी सारी पवित्रता और सुंदरता भर दी और उसकी पवित्रता यीशु के द्वारा जाहिर हुई, प्रतिबिंबित हुई। Oh, if we could be a sweet-smelling Savior. ओ काश हम परमेश्वर को भाने वाली सुगंध बन सकें। If God's holiness could be reflected in us, so we'd go about doing good as Jesus of Nazareth, so it would be a sweet-smelling Savior unto the Lord. काश हम अपने जीवन से यीशु की तरह, नासरत के यीशु के जीवन की तरह अच्छे भले काम करें और परमेश्वर की पवित्रता हम में वास कर सके और हमारा जीवन उसकी नजर में एक मन भावनी सुगंध बन सके। But we fuss, we argue, we stew, we doubt. That's the reason it comes up stench in the nostrils of God. मगर हम उपहास करते, संदेह करते, तर्क करते हैं और यही कारण है कि यह सब परमेश्वर के नथुनों में बदबू की तरह बन जाता है। Our lives were in and out of old places we should not be. हमारा जीवन अब भी उन पुरानी धाराओं में चल रहा है जहाँ नहीं चलना चाहिए। We say things we ought not to say. We do things we ought not to do. हम ऐसी बातें कहते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। We fuss and take sides with the world and deny Christ in the great crucial moment. हम बड़े भयंकर क्षणों में हंगामा करते हैं और मसीह का इनकार करके दुनिया का पक्ष लेते हैं। That's the reason we can't be a sweet-smelling Savior. यही कारण है कि हम उसके लिए मन भावनी सुगंध नहीं बन पाते। But he was, and these magi gave frankincense. मगर यीशु ऐसी ही सुगंध था और उन ज्योतिषियों ने उसे लोबान भेंट किया। Now they gave him myrrh also. अब देखें कि उन्होंने उसे मुर्र भी दिया। And anyone knows that myrrh is a very costly but bitter herb. हर कोई जानता है कि मुर्र एक बहुमूल्य मगर कड़वी जड़ी बूटी होती है। Myrrh. What did myrrh represent? मुर्र किस बात को दर्शाता है? His great supreme sacrifice. यह महान सर्वोत्तम बलिदान का प्रतीक है। His crushed out young life at Calvary where the sins of the world ground him into bits. उसका जवान जीवन सलीब पर मारा कूटा गया, जहाँ दुनिया के पापों ने उसे चूर चूर कर दिया था। Gold because the king. सोना इस कारण दिया कि वो राजा था। Frankincense of his sweet loving life. लोबान उसके प्यारे सुगंधित जीवन का प्रतीक था। And a myrrh because of his sacrifice for sinners that he died. और मुर इसलिए कि उसने पापियों के लिए अपनी जान बलिदान करी। There he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we were healed. वह हमारे ही अपराधों के लिए घात किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए वो सताया गया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए जाएं। That's why they offered him myrrh. यही कारण था कि उन्होंने उसे मुर्र भेंट किया। Being warned of God in a dream, they went the other way. परमेश्वर से स्वप्न में चेतावनी पाकर वे दूसरे मार्ग से लौटकर चले गए। Didn't turn back, but their journey was completed. The star had finished its course. वे वापस लौटकर नहीं आए। उनका सफर और उद्देश्य पूरा हो गया था। सितारे का मार्ग तय हो चुका था। उसका काम
पूरा हो गया था। What does the star mean to us today, friends? मित्रों, आज तारे से हम क्या मतलब समझते हैं? Daniel gives us the answer. Daniel 12:3. दानियल 12:3 में हमें इसका उत्तर मिलता है। Is that those that are wise and know their God shall shine as the firmaments of the heaven. वहाँ कहा गया है कि तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, And those that turn many to righteousness shall shine as the stars forever and forever. और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। What are we then? We are stars. तब आज हम क्या हैं? हम तारे हैं। Every born again Christian is a testimony to the Lord Jesus Christ, a star to reflect the power and holiness of the Lord Jesus. हर एक नया जन्म प्राप्त मसीही जन प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, एक सितारा है जिसके द्वारा प्रभु यीशु की सामर्थ और पवित्रता प्रतिबिंबित होती है, To reflect Him in His life, to perfect Him in His speech, ताकि यीशु का जीवन और उसकी सिद्धता उसके वचन के द्वारा प्रतिबिंबित हो, to perfect Him in His healing power, to perfect Him in His resurrection. उसकी चंगाई की सिद्धता की सामर्थ प्रकट हो और उसके जी उठने को सिद्ध किया जा सके, To reflect Him in every way. Amen. That He was reflected to us by God the Father. और उसी तरह से हम हर बात में मसीह को प्रतिबिंबित कर सकें जिस प्रकार उसने परमेश्वर पिता को प्रकट किया था। We are stars. हम तारे हैं। Watch. देखिए What kind of a star should you be? कि आपको किस प्रकार का सितारा होना चाहिए। This star was not guided by its own power. It was guided by the celestial powers of Almighty God. यह सितारा अपनी स्वयं की सामर्थ्य से प्रकाशित नहीं था, वरन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ्य के निर्देशन में काम कर रहा था। And if we're ever going to reflect sinners to Christ, we've got to be guided by the Holy Spirit. और अगर हमें पापियों को मसीह तक खींच के लाना है तो हमारे लिए पवित्र आत्मा का निर्देशन जरूरी है।